So we start a new chapter of chemistry today, acid, bases and salts. Okay, now what are acids, bases and salts? देखो all the organic or inorganic compounds, okay, whatever is, okay, चाहे वो organic है चाहे inorganic है, तो we can classify into three, either they are acids or they are bases or they are salts. Okay, so one by one we will take what are acids, what are bases, what are salts. Okay, so this chapter is regarding the physical and chemical properties of all acid, bases, salt. Okay, regarding the indicator properties of acid, bases, salt. Okay, how do acid bases react with each other, and what is the type of different that acid ki, how can we find out the strength of an acid, whether it is a strong acid or weak acid. Similarly, strong base, weak base. Okay, that is the pH. Okay, that is regarding this, and we will read about some of the salts, okay, that are commonly used in our daily life. So this chapter is very important chapter, examination point of view se also, and many questions come from this chapter, so you have to do it very thoroughly, and each and every reaction, okay, that you should do by written practice you have to learn these equations. Okay, so we start with the acids today. That what are acids? So first, what are acids? So as we know that physically acids are sour in taste, and corrosive in nature. Corrosive का मतलब होता है कि corrode करते हैं ये, corrosion you have done now. Okay, corrosive in nature. Now chemically if we see that acids are those substances which release H positive ions in their aqueous solution. As cations. मतलब एसिड्स जो है कैटायन सिर्फ H पॉजिटिव को रिलीज करेंगे, कि व्हेन दे आर डिजॉल्व्ड इन वाटर, पानी में डिजॉल्व करने में. तो एक्चुअली दिस इज द अर्हीनियस थ्योरी. साइंटिस्ट हु गेव दिस थ्योरी अबाउट एसिड्स इज, इट इज नोन एज अर्हीनियस थ्योरी. Now what does it mean? Suppose for example, this is HCl. Okay, this is an acid. Name is hydrochloric acid. So when it is dissolved in water, तो water के लिए we'll write it aqueous here. Okay, तो ये क्या release करेगा? It will release H positive ion. Okay, it will dissociate and Cl negative ion. So negative anion, so it will anion, it will give chloride, and H positive it will give as cation. Okay, तो cation सिर्फ ये H positive देगा. अब इसी रिएक्शन को आप ऐसे भी लिख सकते हो, अगर एक्वस की प्लेस पे भी राइट द वाटर. ओके, तो व्हाट विल हैपन, जो ये H पॉजिटिव आयन देगा वो H पॉजिटिव वाटर के साथ कंबाइन कर जाएगा, और H पॉजिटिव प्लस वाटर विल गिव राइज टू H3O पॉजिटिव आयन, प्लस बाकी दूसरा क्या बचा, Cl नेगेटिव. वाटर में वाटर प्लस H पॉजिटिव ये ऐड हो गए, और ऐड हो गए 2 HA और 1 HA, तो H3. Okay, O as it is of positive charge. So this is known as the hydronium ion. Okay, hydronium ion. And the hydronium ion और H positive एक ही बात है. Okay, difference नहीं है. H positive is simply H positive, और जब इसको water के साथ आप mix कर दोगे, it will be added to water, तो H2 plus 1 ये वाला H, तो 3 H हो गए, और O as it is और positive charge. Okay, तो इसलिए we can write the definition this also, कि acids are those substances which release hydronium ion in their aqueous solution. Okay, so we can write it like this also. Okay, acids are those substances
तो दिस इज अर्हीनियस कॉन्सेप्ट है ये भी, क्या अर्हीनियस कॉन्सेप्ट। तो मैं दोनों डेफिनेशंस को कंबाइन कर देती हूँ। ओके, देखो एसिड्स आर दो सब्सटेंसेस which release H positive और H3O positive आए। ब्रैकेट में H पॉजिटिव को क्या कहेंगे, हाइड्रोजन आयंस, और H3O पॉजिटिव हाइड्रोनियम आयंस। In their aqueous solutions. Okay, so these substances are called acids. जैसे मैंने लिखा HCl की रिएक्शन दोनों से, अगर आप सिंपली H पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव यहाँ एक्वस लिखोगे दिस इज ऑल्सो करेक्ट, और वाटर के साथ मिक्स करके लिख दोगे तो हाइड्रोनियम आयन प्लस Cl नेगेटिव आयन एंड इट विल बी एक्वस हियर, एक्वस हियर, क्योंकि वाटर में है। तो दिस इज, तो आइदर हाइड्रोनियम आयन और H पॉजिटिव आयन, सो दे आर कॉल्ड एसिड्स। आई गिव यू मोर रिएक्शंस, फॉर एग्जांपल HNO3, okay, this is nitric acid, so nitric acid aqueous, either we write H positive ion plus nitrate ion NO3 negative, okay, aqueous, aqueous, okay, either this or HNO3 plus water, पानी में ऐड कर दो, okay, and then हाइड्रोनियम आयन, H आयन की प्लेस पे हाइड्रोनियम आयन और प्लस नाइट्रेट आयन। उसी तरह से, okay, so this is the, so these, it means nitric acid is also an acid because it is releasing H positive ion in the aqueous solution or it is releasing haydronium ion in the aqueous solution, so such substances are called acids। अब एसिड्स की क्लासिफिकेशन जो इट इज ऑफ वेरियस टाइप्स, बहुत तरह से हम इसको क्लासिफाई कर सकते हैं। नाउ क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड्स, तो फर्स्ट है ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। Organic acids are those which are obtained from either plants or animals. They essentially contain carbon as one of their elements. Contain carbon देखो फॉर एग्जाम्पल ऑक्सैलिक एसिड, okay, there are so many but I will give you the names of only those which you are familiar with. Okay, this is the formula. Oxalic acid COH, COH,
2 वाटर मॉलिक्यूल्स, इसको हाइड्रेटेड ऑक्सैलिक एसिड कहते हैं। अगर ये 2H2O हटा दो तो तब भी ऑक्सैलिक एसिड है, फिर एनहाइड्रस है बिना पानी के तो हाइड्रेटेड। ओके, सो दिस इज ऑक्सैलिक एसिड। सिमिलरली एसिटिक एसिड CH3COOH एसिटिक एसिड। ओके, वी गेट कहाँ से मिलता है एसिटिक एसिड? बाय ग्रेप्स, बाय मेज, ओके, बाय दिस फर्मेंटेशन प्रोसेस ऑफ द सुक्रोज के उससे, तो प्लांट प्रोडक्ट से हमें मिल रहा है ये। और ऑक्सैलिक एसिड इज ऑल्सो वी आर गेटिंग फ्रॉम द प्लांट्स। तो ऑक्सैलिक एसिड, एसिटिक एसिड, देन ब्यूटारिक एसिड, मतलब जो और कॉमन जो आपको पता है मैं उन्हीं के नाम लिख रही हूँ। इसी तरह से मीथेनॉइक एसिड, फॉर्मूला होता है HCOOH। दिस इज मीथेनॉइक एसिड। फिर आपने उसमें पढ़े हैं पायरुविक एसिड। के अभी फॉर्मूले हम नहीं लिखते ज़्यादा, क्योंकि व्हेन वी विल डू द कार्बन कंपाउंड चैप्टर तो आपको और क्लैरिटी होगी। अभी क्योंकि ये फॉर्मूले ऑलरेडी आपको पता है तो इसलिए दैट्स व्हाई आई एम राइटिंग दीज फॉर्मूलाज। तो दीज आर द ऑर्गेनिक एसिड्स। इनऑर्गेनिक एसिड्स वो होते हैं कि विच वी गेट फ्रॉम द अर्थ और फ्रॉम द मिनरल्स। ओके, मिनरल्स से हमें मिल रहे हैं and they do not contain carbon as the essential element. Okay? So inorganic acids. और mineral acids. इसमें मेनली कौन कौन से हैं? जैसे सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, HNO3, नाइट्रिक, HCl, हाइड्रोक्लोरिक, तो ये एसिड्स जो है मिनरल एसिड्स हैं। कि दैट इज सल्फर का एसिड है, ये नाइट्रोजन का एसिड है, इट इज क्लोरीन का एसिड है। ओके, तो दीज आर द मिनरल एसिड, दे डू नॉट कंटेन कार्बन। देखो किसी में कार्बन नहीं है। एंड सोर्स इज ऑल्सो नॉट दिस प्लांट प्रोडक्ट्स या एनिमल्स। ओके, सोर्स भी ये नहीं है। तो इनको हम मिनरल एसिड और मतलब दीज 3 आर द मिनरल एसिड और इनऑर्गेनिक भी है नेचर में। तो इस तरह से तो एक क्लासिफिकेशन हम इस तरह से कर सकते हैं। हमें बहुत डिटेल्स में नहीं जाना, जस्ट यू शुड नो कि इनके क्या क्या मीनिंग होते हैं। सो देन हाइड्रो एसिड सेकेंड जैसे भी है, हाइड्रो एसिड एंड ऑक्सी एसिड। हाइड्रो एसिड का मतलब होता है कि हाइड्रो एसिड कंटेन हाइड्रोजन and an anion other than oxide. ऑक्साइड को छोड़ के कोई भी दूसरा एनायन इनमें होगा। देखो फॉर एग्जांपल जैसे HCl, दे डू नॉट कंटेन ऑक्सीजन, ऑक्सीजन नहीं कंटेन करेंगे। तो हाइड्रोजन एंड क्लोराइड, HCl एक हाइड्रो एसिड है। HI आयोडिक एसिड है, हाइड्रोजन एंड आयोडीन इनके साथ, तो आयोडाइड है यहाँ पे HI नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव, ये मिलके HI बना रहे हैं। HBr हाइड्रोब्रोमिक एसिड, जैसे हाइड्रोक्लोरिक, हाइड्रो आयोडिक, आयोडिक एसिड भी कह देते हैं इसको। ये ब्रोमिक एसिड है, ये हाइड्रोजन ब्रोमाइड। ओके, और HF हाइड्रोफ्लोरिक एसिड। ओके, तो दीज आर द, तो दिस इज हाइड्रोफ्लोरिक, हाइड्रोब्रोमिक, हाइड्रो आयोडिक, हाइड्रोक्लोरिक। ओके, तो ये सारे हाइड्रो एसिड हैं जिसमें ऑक्सीजन नहीं है। ऑक्सीजन को छोड़ के जो एनायन है वो कोई दूसरा है। ओके, एक्सेप्ट ऑक्सीजन। और अगर ऑक्सीजन होगी, ऑक्सी एसिड जो है दे कंटेन ऑक्सीजन बिसाइड्स H पॉजिटिव एंड अदर एलिमेंट्स। कोई और एलिमेंट भी हो सकता है लेकिन ऑक्सीजन जरूर होगी ऑक्सी एसिड में। देखो फॉर एग्जांपल जैसे H2SO4 है, ऑक्सी एसिड है। H2CO3 है, ऑक्सी एसिड है। H3PO4 है, ऑक्सी एसिड है। H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड,
आई एम टेलिंग यू अबाउट एवरीथिंग जनरल टुडे कि क्या होते हैं एसिड. क्या सल्फ्यूरिक एसिड, दिस इज कार्बोनिक एसिड, दिस इज फॉस्फोरिक एसिड. So they will contain oxygen as one of the element. जितने भी तो उनको ऑक्सी एसिड्स कहेंगे. ठीक, जैसे मैंने ऑर्गेनिक में बताए हैं आपको कार्बोनिक, ये ऑक्सैलिक एसिड एंड एसिटिक एसिड, वो भी ऑक्सी एसिड्स भी हैं क्योंकि ऑक्सीजन भी कंटेन कर रहे हैं. ठीक, तो जो ऑक्सीजन नहीं कंटेन करते उनको हाइड्रो एसिड्स, और जिसमें ऑक्सीजन भी है वो ऑक्सी एसिड्स. ठीक, तो एक इस तरह से क्लासीफाई कर सकते हैं. देन वी कैन क्लासीफाई देम स्ट्रॉन्ग एंड वीक एसिड्स. Strong and weak acids. देखो acids which dissociate completely. In their aqueous solutions. कंप्लीट डिसोसिएशन है उनके एक्वस सॉल्यूशन में. जैसे HCl एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, एक्वस सॉल्यूशन में ये पूरा ब्रेक हो जाता है H आयन में और Cl नेगेटिव आयन में. ओके, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक स्ट्रॉन्ग एसिड है. इसी तरह से सल्फ्यूरिक एसिड, देखो 2 H है यहाँ पर, तो इसलिए 2H पॉजिटिव आयन और प्लस सल्फेट आयन SO4 डाई नेगेटिव आयन. तो ये भी एक स्ट्रॉन्ग एसिड है. ठीक, तो स्ट्रॉन्ग एसिड्स जो है वो डिसोसिएट होंगे कंप्लीट बिल्कुल, तो उनको हम स्ट्रॉन्ग एसिड्स कहेंगे. और वीक एसिड्स आर दोज विच डू नॉट डिसोसिएट कंप्लीटली. Weak acids do not dissociate completely. In their aqueous solutions. जैसे एसिटिक एसिड है CH3COOH. तो जो कंप्लीट डिसोसिएट नहीं होते उसमें हम ऐसे एरो का साइन लगाते हैं, हाफ ऐसे और हाफ ऐसे. इसे साइन ऑफ इक्विलिब्रियम कहते हैं. साइन ऑफ इक्विलिब्रियम मतलब कंप्लीट डिसोसिएशन नहीं है, ये डिसोसिएट करेंगे टू गिव एसीटेट आयन प्लस H पॉजिटिव आयन. इसको कहते हैं एसीटेट आयन. तो मतलब इनमें कुछ ना कुछ मॉलिक्यूल अनडिसोसिएटेड फॉर्म में भी रह जाएंगे, तो इसको कहते हैं दे मेक एन इक्विलिब्रियम बिटवीन द डिसोसिएटेड आयंस एंड अनडिसोसिएटेड मॉलिक्यूल. So they do not dissociate completely in their aqueous solution, but they make an equilibrium between dissociated ions and undissociated molecules. इक्विलिब्रियम, तो इसको हम साइन ऑफ इक्विलिब्रियम कहते हैं. ये जो हाफ एरो इन फ्रंट और हाफ इन द बैक. तो साइन ऑफ इक्विलिब्रियम. रिवर्सिबल रिएक्शंस बोलते हैं इनको, कि रिएक्शन ऐसे फॉरवर्ड भी मूव कर रही है और बैकवर्ड भी चल रही है. मतलब ये दोनों मिलके एसिटिक एसिड दे रहे हैं और एसिटिक एसिड डिसोसिएट कर रहे हैं टू गिव एसिटेट आयन एंड H पॉजिटिव आयन. तो इनको रिवर्सिबल रिएक्शंस कहते हैं. तो वीक एसिड जो है वो रिवर्सिबल रिएक्शन देते हैं. दे डिसोसिएट, डू नॉट डिसोसिएट कंप्लीटली इनटू
this their respective ions. तो ये वीक एसिड्स हैं. इसी तरह से देखो और क्लासिफिकेशन हम कर सकते हैं कंसनट्रेटेड एंड डाइल्यूट, क्योंकि ये टर्म्स अब हम बार बार यूज करेंगे तो फर्स्ट यू शुड बी क्लियर कि व्हाट आर द मीनिंग्स ऑफ दीज टर्म्स, कि क्या है मीनिंग इनका सबका, क्योंकि वंस यू आर क्लियर विद द टर्मिनोलॉजी देन चैप्टर बिकम्स इजी टू अंडरस्टैंड. So then this is concentrated and dilute. कंसनट्रेटेड का मतलब होता है कि जिसमें वाटर की परसेंटेज बहुत ज़्यादा कम है, मतलब ऑलमोस्ट प्योर है. जैसे 95-96% तो एसिड है, हार्डली 3-4% वाटर है. तो जो बिल्कुल प्योर होता है वो 98-2 होता है. जैसे सल्फ्यूरिक एसिड कंसनट्रेटेड है तो 2% वाटर 98% एसिड. ठीक है, तो देन इट इज कॉल्ड कंसनट्रेटेड एसिड. तो कंसनट्रेट मीन्स कि परसेंटेज ऑफ वाटर इज वेरी लो. फॉर एग्जाम्पल 98% H2SO4 प्लस 2% वाटर, कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड है. So that is the concentrated sulfuric acid. Dilute acid क्या होता है कि when percentage of water is high, जैसे 90% एसिड प्लस 10% वाटर. तो अब वाटर की कंसेंट्रेशन जो है दैट हैज इंक्रीज्ड फ्रॉम 2 to 10 हो गई. क्या एसिड कम हो गया, एसिड 98 से 90 पे चला गया तो उसको डाइल्यूट कह देते हैं. अगर हम और पानी डालते जाएं तो एसिड की कंसेंट्रेशन और कम होती जाएगी. कंसेंट्रेशन मीन्स कि अमाउंट ऑफ द सॉल्यूट डिजॉल्व, और यहाँ पे सॉल्यूट कौन है, सल्फ्यूरिक एसिड. तो जितना ज़्यादा सॉल्यूट होगा उतना कंसनट्रेटेड, जितना कम होता जाएगा उतना डाइल्यूट. तो इस तरह से भी क्लासीफाई कर सकते हैं एसिड्स को. एसिड्स अब एसिड्स में देखो, एसिड्स रिलीज H पॉजिटिव आयन, यहाँ हाइड्रोनियम आयन इन द एक्वस सॉल्यूशन. तो सब एसिड कितने H आयन रिलीज करते हैं पर मोल. कोई एक रिलीज करता है, कोई 2 करता है, कोई 3 करता है, तो इट डिपेंड्स. इसको हम कहते हैं बेसिसिटी ऑफ एन एसिड. तो व्हाट इज बेसिसिटी ऑफ एन एसिड? Number of H positive ions यहाँ पर आप H3O पॉजिटिव भी लिख सकते हो, हाइड्रोनियम आयन भी लिख सकते हो. H पॉजिटिव और हाइड्रोनियम आयन इंटरचेंजेबल है. तो नंबर ऑफ H पॉजिटिव आयंस रिलीज्ड, देखो वर्ड इज रिलीज्ड नॉट कंटेन्ड. कंटेन्ड नहीं आएगा यहाँ पे, बच्चे बहुत ज़्यादा इसको कंटेन्ड लिख देते हैं. कंटेन्ड लिखते ही डेफिनेशन रॉन्ग हो जाएगी. ठीक है, तो नंबर ऑफ H पॉजिटिव आयंस रिलीज्ड बाय एन एसिड इन इट्स एक्वस सॉल्यूशन is called, मतलब by an acid means by one molecule of an acid. और क्लियर कर दो. is called basicity. अब बेसिसिटी के बेस पे हम एसिड को क्लासिफाई कर सकते हैं. ऑन द बेसिस ऑफ बेसिसिटी एसिड्स कैन बी, कौन कौन से हो सकते हैं, मोनोबेसिक, डाइबेसिक, tribasic and so on. Now what are monobasic? Monobasic क्या होते हैं?
acids which release only one H positive ion per molecule. In their aqueous solution, okay, are called monobasic. For example, HCl स्ट्रॉन्ग भी है इसलिए एरो स्ट्रेट लगा दिया कि स्ट्रॉन्ग एसिड है, H पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव, तो एक ही H पॉजिटिव को रिलीज कर रहा है इसलिए वो है मोनोबेसिक। CH3COOH, देखो कंटेन तो 4H है, इसमें 3 और 1 4 H है, लेकिन रिलीज सिर्फ एक करता है ये, इसको मैंने ये लगा दिया, it releases only acetate ion plus 1 H positive ion, तो इसलिए ये भी मोनोबेसिक है। HNO3, तो अगर आप इसमें कंटेन्ड लिख दोगे तो कंटेन तो ये 4 कर रहा है, इट शुड बी टेट्राबेसिक, ओके, लेकिन है मोनोबेसिक, इसीलिए मैंने आपको बताया कि डेफिनेशन में वर्ड रिलीज आएगा, तो HNO3 एक्वस, तो H पॉजिटिव प्लस नाइट्रेट आयन, तो दिस इज ऑल्सो मोनोबेसिक एसिड, तो ये मोनोबेसिक एसिड है विच रिलीज 1 H पॉजिटिव। देन डाइबेसिक, अब डाइबेसिक कौन से होते हैं? एसिड्स विच रिलीज 2H पॉजिटिव आयंस इन देयर एक्वस सॉल्यूशंस। एसिड्स per molecule in their aqueous solutions, so they are called dibasic acid। जैसे H2SO4 2H पॉजिटिव आयन प्लस सल्फेट आयन, क्या डाइबेसिक है। इसी तरह से ऑक्सैलिक एसिड, दिस इज ऑक्सैलिक के एक्वस, डाइहाइड्रेटेड नहीं, मैंने 2H2O नहीं लिखा, एनहाइड्रस फॉर्म में, तो इट विल गिव ऑक्सैलेट आयन, इसको ऑक्सैलेट आयन कहते हैं, एक नेगेटिव चार्ज एक नेगेटिव चार्ज, क्योंकि दोनों H पॉजिटिव के साथ बाहर हो गए, तो 2H पॉजिटिव, तो डाइबेसिक है, ओके, इट इज ऑल्सो डाइबेसिक। इसी तरह से कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन है, H3PO3 कंटेन 3 कर रहा है, ओके, लेकिन रिलीज 2 करेगा, तो 2 करके बाकी क्या बचा? HPO3 नेगेटिव प्लस 2H नेगेटिव, तो दिस इज ऑल्सो द फॉस्फोरस एसिड है ये, तो फॉस्फोरस एसिड इट रिलीजेस 2H पॉजिटिव, तो डाइबेसिक है, तो these all are the dibasic acid which release 2H positive ions per molecule in their aqueous solutions। Then tribasic,
Okay, ट्राइबेसिक्स देखो, एसिड्स which release H positive ions per molecule in their aqueous solutions are called tribasic acids. Like for example, H3PO4 फॉस्फोरिक एसिड है, तो एक्वस सॉल्यूशन में इट विल रिलीज 3H पॉजिटिव आयन प्लस फॉस्फेट आयन, ट्राइबेसिक है. So this is called the basicity of an acid, or it is the monoacidic, diacidic, triacidic like this. Okay? तो फिर पॉलीएसिडिक कह देते हैं अगर ज़्यादा एच आयन हो पर, तो ज़्यादा एच आयन रिलीज करें, लेकिन अदरवाइज मोनो, डाई, ट्राई. क्वेश्चन में कई बार अगर आपको डाइबेसिक एसिड, ओके, तो उसी से आपको क्लियर हो जाना चाहिए डाइबेसिक का मतलब कि 2 एच आयन रिलीज करेगा. ओके, तो 2 एच आयन रिलीज करेगा, तो जैसे आपके सिलेबस में ऑक्सैलिक एसिड है, सल्फ्यूरिक है, तो इससे थोड़ा हमें आइडिया हो जाता है कि एसिड दिस में भी कि HCl, HNO3 ये नहीं हो सकते, कि एसिटिक एसिड ये नहीं हो सकते, क्योंकि वो सारे मोनो एसिडिक हैं. तो थोड़ी हमें जैसे जैसे आपको टर्मिनोलॉजी और ज़्यादा क्लैरिटी होगी सब इसकी टॉपिक की, उतना आपको आइडेंटिफिकेशन में हेल्प होती है, एंड यू कैन थिंक ओवर कि क्या इसमें आंसर्स हो सकते हैं कि क्वेश्चंस में, व्हेन वी नो मोर अबाउट द थिंग्स. तो दिस वाज द कि कैन मैं ऑन द बेसिस ऑफ बेसिसिटी, तो मैंने क्लासिफिकेशन बताई है आपको एसिड्स की कि क्या होती है. ओके, अब एसिड्स में जो एसिड जैसे फिजिकल प्रॉपर्टीज आई टोल्ड यू कि दे आर सॉर इन टेस्ट, ये आप कॉमनली भी ऑब्जर्व करते हो. जैसे नींबू है, ओके, अब नींबू में सिट्रिक एसिड होता है, खट्टा है बहुत ज़्यादा. ओके, एप्पल में भी थोड़ी सी खटास है, तो उसमें भी एसिड है. इसका मतलब कर्ड में भी थोड़ा सा खटाई होती है, उसमें भी एसिड है. ओके, विनेगर में भी थोड़ी सी खटाई होती है, मतलब जहाँ थोड़ा खट्टापन है, तो इसका मतलब दे कंटेन एसिड्स. ओके, नींबू में, फिर इसमें आपके टमाटो में, टैमेरिंड में, क्या टैमेरिंड मतलब इमली की जो खट्टी चीज़ें हैं हमारी, उसमें सब में. फिर हमारी बॉडी में भी HCl है, स्टमक रिलीजेज HCl एसिड. ओके, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स में यू हैव रेड अबाउट दिस, तो वहाँ भी एसिडिक इफेक्ट आ रहा है एसिड के कारण. तो ऐसे बहुत सारे एसिड्स हैं जो हमारे फूड प्रोडक्ट्स में मिलते हैं. एंड बटर में भी एसिड है. बटर को भी आप देखो, अगर बटर रेंसिड हो जाए, मतलब बटर थोड़ा सा गर्मी के मौसम में खट्टापन आ जाता है उसमें, तो इट ऑल्सो कंटेन्स एसिड. ठीक है, तो इस तरह से बहुत सारे ये कॉमनली फाउंड एसिड्स हैं. तो मैं आई गिव यू द नेम्स ऑफ सम ऑफ द एसिड्स, फिर इसकी हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ को फिर नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे. तो बट फर्स्ट आई टेल यू सम ऑफ द कॉमन एसिड्स. अब कॉमन एसिड्स में जैसे सिट्रिक एसिड आपने पढ़ा है कि अभी कि सिट्रिक एसिड जो है दैट इज अ कॉमन एसिड. अब कौन कौन से हैं देखो एसिड, ये तो नाम अब आपको पता ही लग गए, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड. तो अब कॉमन एसिड्स, so all the citrus fruits, सिट्रस फ्रूट्स में कौन कौन से आ जाएंगे, जैसे ऑरेंज, लेमन, ओके, देन योर आंवला, गूसबेरी. ओके, ये सब हमारे सिट्रस फ्रूट्स हैं. तो सिट्रस फ्रूट्स कंटेन सिट्रिक एसिड. देन मिल्क, खट्टा हो जाएगा अगर मिल्क, तो इट कंटेन्स लैक्टिक एसिड. देखो मिल्क की जो शुगर है दैट इज नोन है लैक्टोज. ओके, उसी से नाम पड़ा है ये. कर्ड और मिल्क में लैक्टिक एसिड है. ओके, देन यूरिन, जो चीजें आप पढ़ चुके हो, आई एम टेलिंग यू ओनली अबाउट दोज. यूरिन क्या कंटेन करते हैं, यूरिक एसिड. फिर
स्ट्रिंग ऑफ बीज, मधुमक्खी के डंक में मीथेनॉइक एसिड, दैट इज द स्ट्रिंग ऑफ बीज। फिर उसके बाद आपका आ जाता है बटर, rancid butter, that is butyric acid। और आगे इधर लिख देती हूँ कि दैट इज ब्यूटारिक एसिड। फिर टैमेरिन में, ग्रेप्स में, एप्पल में टार्टरिक एसिड, टैमेरिन कहते हैं इमली को, ग्रेप्स, एप्पल कंटेन टार्टरिक एसिड। इन सब में ये है, ग्रेप्स में और एप्पल में, सब में इसमें। फिर फैट्स में स्टीयरिक एसिड, then your vinegar, एसिटिक एसिड, टमाटो में ऑक्सैलिक एसिड, then one your gastric juices, गैस्ट्रिक जूसेस में कौन सा एसिड है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। So these are some of the common acids, okay, which are found in our various food products and in other things. यूरिन देखो, अब इसका मतलब जब यहाँ से देखो, फलों में मिल्क प्लांट प्रोडक्ट है, मतलब एनिमल प्रोडक्ट है, ये प्लांट प्रोडक्ट है। यूरिन इज ऑल्सो इन एनिमल्स, के स्ट्रिंग ऑफ बीज भी एनिमल, बटर भी प्लांट प्रोडक्ट है, ये भी सारे प्लांट्स हैं। फैट्स भी प्लांट्स में, विनेगर भी प्लांट, और गैस्ट्रिक जूसेस ये सिर्फ एक हाइड्रोक्लोरिक एसिड को छोड़ के बाकी सारे एसिड ऑर्गेनिक है। दीज ऑल आर ऑर्गेनिक, ओके। हाइड्रोक्लोरिक एसिड तो स्टमक की ग्लैंड्स रिलीज करती हैं, ओके, बट अदरवाइज इट इज अ मिनरल एसिड, ये एक मिनरल एसिड है। बाकी जितने भी मैंने लिखे हैं सब ऑर्गेनिक है, okay, they are all organic and they all contain carbon. Hydrochloric acid though it is released by the gastric glands, लेकिन it does not contain carbon, okay, इसलिए ये organic acid नहीं है। बाकी सारे organic हैं जितने भी मैंने लिखे हैं। तो इस तरह से ये कुछ common acids हैं which are present in the nature, okay। तो अब acids की properties, chemical properties या acids जो आपने बचपन से पढ़ा है कि acids convert litmus paper का color change करते हैं, तो उनको हम indicators कहते हैं। तो उनको हम डिटेल्स में पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में कि दैट व्हाट आर द इंडिकेटर प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड, व्हाट आर द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड, ओके।